viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. Yes, Assalamualaikum. Welcome to all of you to the today's session regarding workforce diversity with a flexible hours. Welcome to all participants. Thanks a lot for your time and we connected here and sit together and share the experience and ideas regarding the today's topic. Walaikum assalam, sir. How are you? I am fine, good. सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है. Just wait, please. आपको पता है मैं आपको बिल्कुल सारों को बहुत करीब रखता हूँ. No distance. Sir. Today in our session we have Momna Riaz. She is also a corporate trainer consultant and working with the State Bank of Pakistan. And along with that, Mr. Zishan Arif is also operation management consultant and also operation management consultant as well as the banking sector. Along with that, we have engineer Dr. Zishan Najam. He is also a corporate trainer consultant working with the different companies. And also we have Shiva Munir. She has done recently masters in finance and working with the different internship programs in the corporate training sections. Thank you to all of you. Sir, today we have started our session from Mr. Zishan Arif sir. Sir, what you have done about today's topic that is based on workforce diversity with flexible hours. Right. First of all, thank you so much, Zishan Javed Saab, and Assalamu alaikum to all of our members in this meeting. With regards to our topic today, workplace diversity, workforce diversity in with flexible hours. So actually, what I am getting with this topic is you are giving flexibility in your working hours to your employees. If I'm not wrong, then please, Zishan Javed sir, please correct me. Right. I'm online, sir. Yes, sure. Carry on, please. Okay. One more thing, this session is in a recorded mode, so every conversation will be recorded and will be shown in the group as well. Thank you. So please. Yes. And I would like to add one more point after the Zishan Javed Saab discussion that I think it's my suggestion to all of you that if we keep our meeting on video on mode, then it will be more attractive, especially for those who will be watching after the sharing of these videos on LinkedIn or any other social platform. तो आई थिंक ये ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा कि अगर हम अपनी वीडियोस के साथ जो है वो अपने हमारी कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी जो डिस्कशन है या हमारा वेबिनार है वो कंडक्ट करें. तो ये मेरी एक सजेशन है, मतलब बाकी तो जिनको we will do the thing, sir. As per your suggestions and recommendations are valuable for us, sir. Thank you. Sir, thank you so much. Right. With regards to today's topic, तो एज यू नो कि ज़िशान जावेद साहब जब भी कोई टॉपिक देते हैं तो मैं थोड़ा उसको जाके उसको स्टडी करता हूँ कि हमारे पास ग्लोबली क्या इंफॉर्मेशन इसके हवाले से मौजूद है ऑन इंटरनेट. सो व्हाट आई फाउंड एक्चुअली वाज के फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मींस यू आर एक्चुअली गिविंग सम ऑप्शंस टू योर एम्प्लॉयज कि वो अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के लिहाज से अपनी जॉब सिलेक्शन या अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें. लाइक वन थिंग आई कैन से इज लाइक हाइब्रिड वर्किंग. Hybrid working means that you are actually working at home or on your workplace. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कंपनी की तरफ से कि आप फ्लैक्सिबल होके घर पे भी काम कर सकते हैं और अगर आप अपने वर्क प्लेस से काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं. इसी तरीके से हमने रिसेंटली हमने एक एक्सपीरियंस किया पैंडेमिक के दौरान के मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने घर से काम को इनिशिएट किया, घर पे अरेंजमेंट्स किया और उसके अकॉर्डिंगली उनको
फैसिलिटेट भी किया गया, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए, डिवाइसेस दी गई ताकि वो कन्वीनियंटली घर से अपना जो है वो काम कर सकें। तो इट मीन्स के आपने फुली रिमोट वर्किंग का एक्सपीरियंस किया। हमारे लिए तो खैर बहुत टफ था, बिकॉज जहां हम ऑफिस के अंदर फ्लेक्सिबली अराउंड 8 आवर्स, 8.5 घंटे जो हम काम कर रहे थे, बट एट होम होने से हमारे लिए ये थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ। बहरहाल इसके आगे ही बात कर लेंगे कि हमारा टाइम बढ़ गया काम करने का, और अल्टीमेटली कोई टाइम था नहीं, तो किसी टाइम पर भी हमारी डिस्कशन होती रहती थी, चाहे वो रात का कोई भी टाइम हो रहा हो। एनीवेज, तो इसके ऊपर आते हैं। इसके बाद अगर हम कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, तो इसका मतलब फिर हम एक ऑप्शन मार्केट के अंदर देखते हैं, लाइक पार्ट टाइम का, कि आप कहीं भी जॉब को चूज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको फुल टाइम के लिए करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम के लिए करना चाह रहे हैं। जो बहुत सारे एम्प्लॉयज जो फुल टाइम के लिए किसी दूसरी जगह इंगेज होते हैं, तो वो पार्ट टाइम के लिए दूसरी जगह इंगेज हो जाते हैं। लाइक मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकता हूँ कि आई एम डूइंग जॉब, and along with that, apart from that, I am also a lecturer in a university, Ikra University, and Alhamdulillah, I am going to join as an adjunct faculty member in CBM as well in the upcoming semester, starting from September. तो बेसिकली ये एक पार्ट टाइम सेटअप हो गया। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसी मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो कुछ और पॉइंट्स भी निकल के आए, जिसमें एक था जॉब शेयरिंग, कि आपकी जो आवर्स है, लाइक 35-40 आवर्स अभी अगर आपने काम करना है, तो वो एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, वो बल्कि एक या दो एम्प्लॉयज मिलके जो है वो आवर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी जो 2-3 और पॉइंट्स थे वो मुझे नजर आए, कि जो कि कंपनीज जो है वो ग्लोबली जो है वो ऑफर कर रही हैं, कि ताकि एम्प्लॉयज जो हैं बेसिकली दे आर कीन टू गेट दी जॉब रिजॉल्व ना, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, इररिस्पेक्ट ऑफ, लाइक मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने गूगल के बारे में भी पढ़ा था कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल आवर्स के ऊपर काम करते हैं, और एम्प्लॉयज को इवन ऑफिस के अंदर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि एम्प्लॉयज के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो, और लाइक उनका कोई ऑफिस आवर्स ऐसा कोई सेट नहीं है, जो थोड़ा आई डोंट, ये मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा था इस चीज को, तो हो सकता है अभी आके चेंज हो गया हो। बट वहाँ पे लोगों के लिए सोने का इंतजाम भी है, वहाँ पे उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम भी है, वहाँ पे अगर वो गेमिंग्स करना चाह रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, जिम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद हैं। तो ग्लोबली तो उसके ऊपर बहुत काम हो गया। इवन अभी मैंने सुना था, लाइक एंग्रो में, आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने डे केयर सिस्टम जो है वो सेटअप जो है वो अपने जो है वो Exactly, I इसमें agree on अरेंज that. किया है। बिल्कुल। तो कि अगर जो मदर्स जो के छोटे बेबीज हैं, तो वो उनको हर्ज ना हो, और वो कन्वीनियंटली वहाँ पे अपने बेबीज को वहाँ पे इंगेज करके तो अपने काम को वो कर सकें, ताकि उनको एक टेंशन जो दिमागी होती है वो ना रहे। तो मेरा ख्याल है ये एक इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, देखने में नज़र आ रहे हैं। बट ये जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स की, तो इसमें फिर हम इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम क्या इससे बेनिफिट गेन कर रहे हैं, व्हाट बेनिफिट्स वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम दिस। तो मैंने जो डिटेल्स पढ़ी उसके अंदर मुझे बेनिफिट्स इसके ज़्यादा नज़र आए एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस के। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाह रहा है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल आवर्स जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, कि वो जब भी रिलैक्स हो तो वो अपनी फैमिली मसरूफियात के जो भी इंगेजमेंट्स हैं उसको निपटा के फिर वो जो है अपने काम पे इंगेज हो जाए और उसको निपटा ले। सिमिलरली लाइक जो आई थिंक जो हमने पेंडेमिक में भी इस चीज़ को देखा कि एक्सपेंसेस, जो कम्यूटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, अगर हम दोनों एंगल से देखें, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से और कंपनी के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो
फर्क आ जाता है। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि एक चीज तो मैंने भी पेंडेमिक के दौरान एक्सपीरियंस की कि आपकी एक एक प्रेशर सा होता है इंसान के अंदर, जब वो उसको ये होता है कि सुबह उठ के उसने जाना है और उसके बाद फिर वो एक टाइम पे वापस आएगा, फिर दूसरी इंगेजमेंट्स हैं, तो वो उस चीज से रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद फिर ये कहता है कि नहीं, जाना तो कहीं नहीं है, घर बैठ के सुकून से जो है वो काम करना है। हाँ, वो अलग बात है कि घर की जो पावर है या जो भी इक्विपमेंट सेटअप्स हैं वो अल्टीमेटली यूज हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी, लाइक मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि ऑर्गेनाइजेशंस तो थी, मेरी जो कंपनी थी वो फ्लैक्सिबल थी इस हवाले से कि इवन अगर हम थोड़ा सा मॉर्निंग रात को अगर हम थोड़ा लेट भी इंगेज रहे हैं, लाइक मैंने 2-2 3-3 बजे तक भी रात को इंगेज रह के हमने मीटिंग्स में काम किया, बट सुबह थोड़ा हमारा टाइम रिलैक्स हो जाता था। ऑल्दो दैट वाज अ पैंडेमिक पीरियड के हाँ भी आपने वर्किंग आवर्स को फॉलो करना है, 10 चीजें थी, बट उसके साथ साथ ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी। प्लस ये कि लाइक एक चीज जो यहाँ पे मुझे मिली वो ये थी कि परफॉर्मेंस जो थी वो कहीं पे मैंने पढ़ा कि वो इम्प्रूव हुई। यानी जब ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड जब काम कर रहे थे तो वो पीरियड और उससे पहले का जो वर्किंग आवर्स का जो ऑफिस में टाइम गुजारते थे, उसमें एम्प्लॉयज की इम्प्रूवमेंट हुई, एम्प्लॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया, एक जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो ये कुछ मेरा ख्याल है बेनिफिट्स हो गए। और डिसएडवांटेज तो एक चीज मैंने आपको बताई कि लाइक सिंस यू आर फ्लेक्सिबल, तो इसका मतलब आप किसी भी टाइम पे किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो इंगेज कर सकते हो कि हाँ भी ये मसला है, सुबह मीटिंग है, फलाना ढिमकाना, तो वो फिर आपने उस चीज को पूरा करना है। तो ये मेरा ख्याल है एक डिसएडवांटेज था कि लाइक यू आर एक्चुअली फ्लेक्सिबल बट नॉट फ्लेक्सिबल। तो बहरहाल Right. आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई वुड So लाइक। thank you so much. यस Thank प्लीज। you so much, sir, for your presence and time. Uh, we have Momna Riaz. She's a corporate trainer working with the State Bank of Pakistan as a corporate trainer in Peshawar as well, and also working with different corporate companies as a trainer. Momna, how are you, ma'am? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। Thank you so much for your time मैं and बिल्कुल जी मैं presence. बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? Alhamdulillah, ठीक. Mona, what you have said about the today's topic that is based on workforce diversity, you have 10 minutes to explain it out to things. बिल्कुल श्योर। मैं इसको जो है तो स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सर जीशान, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने इसको एक्सप्लेन किया इन अ वेरी मतलब आपने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर हम स्टूडेंट्स को जो मार्केट में आएंगे उनको अगर हम ये ट्रेन इस तरह करें तो वो जरा उनका थोड़ा सा जो है वो थिंकिंग पावर उनकी जरा ज्यादा होगी। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज बेसिकली जो है हमारे पास सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हैं अमंग एम्प्लॉयज जो कि एक फर्म में काम करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। लेट्स से कि वो किस उसमें हो सकती है, दैट कुड बी एज, जेंडर हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, फिर उसके बाद आपकी फिजिकल एबिलिटीज आ जाती है, रेस, रिलीजन, इस तरह की बहुत सी चीजें। मैं ये समझती हूँ कि एडवांस जो इसके एडवांटेजेस हैं उसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस में जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो था कम्युनिकेशन बैरियर। आई थिंक सो अगर कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो वीक होता है, डिफिकल्टीज उसमें आती हैं, तो आप उसको सही तरीके से लीड नहीं कर पाते। तो इसी तरह जो है हम जो है वो अगर आप एक मार्केट में आते हैं और अगर आप एक स्टेज लेते हैं तो आप ये बताते हैं कि हाउ टू लीड इन दैट, आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप उसको कैसे जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे पास डिसएडवांटेजेस कम है बट अगर देखे जाए तो वो प्रॉपर एक ऐसी चीज है, उसको हमने उसके लिए टूल्स जो हैं वो हमने बनाने हैं, बताने हैं मार्केट में जाके, ताकि जो आ रहे हैं पीछे मार्केट में जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेट सपोज, क्योंकि मैं जब आई थी तो मुझे ऐसी एज कोई भी देयर वाज नो सीडीसी इन इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी। मैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, तो उस टाइम तक देयर वाज नो गैजेट, नो टूल, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमें बहुत सी चीजें, हमें इसी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से गुजरना पड़ा। आजकल भी ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी फर्म्स हैं जो हमें नहीं एक्सेप्ट करती।
जो उनके पास है कि एक मेल डोमिनेंसी होनी चाहिए, तो वो है। प्लस अभी जो ये नया ट्रेंड आया है कि नहीं, हमारे पास जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो फीमेल्स और जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। तो आई थिंक सो एक वो जो रेजिस्टेंस टू चेंज जो था वो बहुत मुश्किल था, और आई थिंक सो वो अब आ रहा है। दैट इज जो हमारे एक कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट कुलीग्स आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो वो हमें एक वर्क प्लेस जो है वो किस तरह सेटल डाउन करना है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो लेते हैं तो एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर चैम्बर के साथ होना चाहिए। प्लस हमारे पास जो है बहुत सी वैल्यूज और ये बिलीफ्स में भी काफी जो है तो हमारे समटाइम्स एक्सपीरियंसेस हो गए, इनमें भी बहुत सी जो है तो गैप आ जाता है। अगर दूसरा एम्प्लॉय को सोच रहे हैं आई एम थिंकिंग सम वे, तो फिर वो एक चीज है कि वो भी हमारे पास एक गैप आ जाती है। तो आई बिलीव के यस देर आर मेनी एडवांटेजेस, बट अगर डिसएडवांटेजेस भी हैं तो उनका कुछ ना कुछ एरिया है जो हमें टूल सेटअप करने चाहिए, ताकि हम आगे जो जितने भी लोग हैं उनको इजीली ये बता सके कि यार ये हो सकता है। अब एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो मेरे ख्याल से सबसे जो इसको इजीली स्मूथली जो फंक्शन हुआ था इसका, दैट वाज इन आईबीएम। आईबीएम जो है हमारे पास, उनने जो है तो कमिटमेंट की थी कि हम इजीली डाइवर्स कर देंगे अपनी जितनी भी, उनकी अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी हुई, उनके जो कनेक्टिविटी है विद कस्टमर्स, विद क्लाइंट्स, विद आपके अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, वो बहुत अच्छी हो गई। फिर द सेकेंड एग्जाम्पल इट कैन बी कोको कोला। कोको कोला भी जो है तो उनकी भी जो कमिटमेंट थी कि हमने जो है ना डाइवर्सिफाई करना है, इसको इंक्लूजन की तरफ लाना है, और हमने जो है तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों में करनी है। बट इसकी हेल्प क्या हुई, इसकी हेल्प ये हुई कि उन्होंने जो क्लाइंट्स हैं, जो हम कस्टमर्स हैं, उनको बहुत इजीली अपील किया, इट वाज वेरी अपीलिंग। माइक्रोसॉफ्ट भी है, वो भी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को जो है प्रमोट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो उनका जो एक पॉइंट है दैट वाज कि जेंडर इक्वालिटी पे उन्होंने काम किया। जेंडर इक्वालिटी को उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था टू अंडरस्टैंड, कि उन्होंने बहुत अच्छे से जेंडर इक्वालिटी को भी जो है तो आगे स्टेज ऑन किया था। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो मेरा जो कॉन्सेप्ट जो आपने एक पिलर बनाया सर जीशान, तो मैंने उसको थोड़ा सा आगे with the disadvantages I just scoped around ke we can overcome as well. Thank you so much. Very superb, very interesting. Thank you so much. Yes, sir. We have Dr. Zishan Thank over you here sir. after a long time, sir. What you have said about today's topic? अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, ठीक हैं? Allah ka shukr, everything fine. अच्छा, वालेकुम बेसिकली अस्सलाम। जी ये टॉपिक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें असल में दो पहलू हैं। अभी हमारे दो जो थे डिस्कशन जो हुई है बड़े अच्छी पॉजिटिव लेवल पे, उनसे शायद एक बात जो है वो शायद रह गई, वो ये थी कि टॉपिक जो है उसमें डाइवर्सिटी का भी पोर्शन शामिल है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का, और फिर उसके साथ फ्लेक्सिबल आवर्स का है। Am I audible to all? Yes, yes, we are listening. जी अच्छा, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है, दिस इज द मोस्ट intriguing, or you can say कि the most important factor in today's corporate world as well as commercial world in elsewhere. मैं आपको इसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। पहले तो ये तकरीबन बात समझनी चाहिए कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है क्या। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ये कि आपके पास हर रंग, हर नस्ल, हर जेंडर और हर बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो एक ही जगह पे काम कर रहे हो। द बेस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे आपको एक ही छत के नीचे जो है काफी यू फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट backgrounds, different communities, different languages, etc. तो मैं अपनी मुल्तान का थोड़ा सा आपको बताऊंगा। 2019 में मैं मुल्तान में जब मुझे ऑफर हुई, तो मैं जब पहुंचा वहां तो मुझे बड़ा हैरत का सामना करना पड़ा कि डिस्पाइट कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, और लाइक आई स्पीक वेरी गुड पंजाबी एंड आई स्पीक वेरी गुड सराइकी एज वेल, स्टिल उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एक्सेप्ट करने में। जगह जगह वो जो थे ना ऑब्स्ट्रक्शंस,
सामने आ रहे थे. तो I was really amazed कि despite being a Pakistani national with fluent linguistic skills, I was facing that problem, the obstacles, the hurdles, all kinds of hiccups. यहाँ तक कि वो बाकायदा रजिस्ट्रार के ऑफिस में there was a kind of skirmish as well. So अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर एक अपने मुल्क में वर्क फॉर डाइवर्सिटी में अगर ऐसा अपहीवल आ सकता है, तो फिर दूसरे मुल्क में आप किसी यानी यूके में अगर आप जाते हैं और यू स्टार्ट वर्किंग देयर, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच अपहीवल्स और सच प्रॉब्लम्स कि वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है. That's a big problem. Yeah, and having worked in the United States as well, I am privy to that information that there were some Indians, there were some South Indians who were working with me in a restaurant. I used to work as a waiter there in the initial phase of my stay in the United States. So that hotel was in Houston, Texas. So what happened one day, that guy, a South Indian guy approached me and told me that your country is nothing and India is everything and this and that. He tried to instigate me. And I was young, so I got instigated. And would you believe that I threw him on the floor just because that he was saying some negative things about my country? So such problems do occur, and I'm like witness to that. I've practically experienced the problems associated with acceptance and inclusion of employees of different backgrounds. So workforce diversity एक तरफ तो बड़ी जबरदस्त चीज इसलिए कि आपको अलग अलग जहन और दिमाग मिल जाते हैं, टैलेंट पूल बहुत स्ट्रांग मिल जाता है. जैसे अब रशियंस, अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो रशियंस जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन मैथमेटिशियंस हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. इस तरह चाइनीज वर्कर जो है वो जो टीम वर्क के लिहाज से बेहतरीन है. इंडियन वर्कर्स जो है वो उनमें भी एक वो है, एक्सेप्टेबिलिटी है. सो अगर तो ये चीज अच्छी तरफ चली जाए, if it goes in the right direction, work for diversity is the thing that can happen to an organization. But if it goes wrong, so it can really go wrong. So work for diversity is very like it's probably the defining factor in today's world. If an organization or an enterprise has to prosper, so if it is willing to incorporate the diversity factor, so it can be a make or break situation. So it has its pluses. So diversity is like nowadays, if you're working online, you can have a person from one is from Mexico, the other is from Pakistan, the other can be from Colombia. So the world is getting smaller by the day. So work for diversity is now explained. और बाकी flexible hours का जहाँ तक ताल्लुक है, that is जैसे हमारे जो है हमारे intelligent. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. जी. We have Shiza Thank you. over there. Shiza, what you have said today's topic regarding the workforce diversity. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum Assalam. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड. सर, जिस तरह बाकी सबने डिस्कशन की वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगी. जिस तरह डॉक्टर ज़िशान नजम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिल्कुल इसी तरह मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मैंने भी रिसेंटली वापडा हाउस में इंटर्नशिप कंप्लीट की है और वहाँ हमारे पास मोस्टली जो इंटर्निस थे हमारे साथ, वो पेशावर साइड से थे. तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो उन्होंने ये चीज़ फील भी की और उन्होंने इसके बारे में कंप्लेन भी वहाँ की कि जब हम यहाँ आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो बाकियों की इतनी चेकिंग नहीं होती जितनी हमारी होती है. मतलब वो पेशावर साइड से हैं तो उनके कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरह का है कि सिक्योरिटी इशू इनकी साइड से ही होगा. तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, कि हमें डिफरेंट रेंज से हमें लोग मिल रहे होते हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और उनके आइडियाज हमारे साथ शेयर हो रहे होते हैं. लेकिन जो है वो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. इवन जो
हमने ग्रुपिंग की होती है कि ये इस एरिया के लोग हैं, वो आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे। जिस तरह मैंने अपनी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर किया, वहाँ पे जो पिशावर साइड से आए हुए थे उनका अपना एक अलग से उन्होंने ग्रुपिंग की हुई थी कि वो अलग अपना ग्रुप बनाया हुआ था। तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा कम्युनिकेट करने की जरूरत है इस चीज को, तो ये चीज खत्म हो सकती है। और ये चीज बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Thank you. Sir, shall sir kindly finalize and conclude it shortly in a way, and then we have posted our recordings today's session regarding with along with the feedback in the group as well as in the social media platforms. Thank you. Are you asking me or Dr. Zishan? Yeah, Dr. Zishan Arif, sir, आप थैंक यू सो मच। राइट जी, तो मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा स्पेशली मोमना रियाज, डॉक्टर जीशान और शीजा मुनीर के, उन्होंने आज हमारे एज ए पैनलिस्ट हमें ज्वाइन किया और अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से और एक अच्छी मालूमात उन्होंने हमारे साथ शेयर की हमारी आज की डिस्कशन में। तो यस, बिल्कुल डॉक्टर जीशान ने भी बिल्कुल एक चीज़ को हाईलाइट किया जो कि हम अपनी डिस्कशन में स्किप कर रहे थे, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के हवाले से। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस हवाले से भी जहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है कंपनीज के अंदर, जहाँ पे जेंडर्स के हवाले से, कास्ट के हवाले से, रेसिस के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके हवाले से भी चीज़ों को जो है वो बेसिकली वो एक सेपरेट किया जाता है उनको कि यार ये फलाना इस तरह करके। तो इस चीज़ का भी हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा और ख्याल होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कि जो भी फ्लेक्सिबल वर्क, बहरहाल ये चीज़ें काफ़ी हद तक अब ग्रेजुअली आई थिंक इम्प्रूव हो रही हैं ग्लोबली। कि हम ये देखते हैं कि अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ग्लोबली हम देखें या इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो अब बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इवन अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ तो लाइक हम कहते हैं गो ग्रीन, तो वो कॉन्सेप्ट भी जो है CSR का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बड़ा एनकरेज किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इन सारे मामला को भी बखूबी और मुझे नज़र आती हैं, मतलब चीज़ें हम जब इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं तो एक कंसिडरेशन नज़र आती है, एक इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है, कंपनीज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। तो आई थिंक इंशाल्लाह आगे भी चल के ये चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करेंगी और हम मैं अगेन निशान जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि वो एक माशाल्लाह हर दफ़ा एक बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आते हैं जिसके ऊपर हमारे लिए एक डिबेट करना और उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक अब पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह ऐसे ही करते करते कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हम इसको एक मैं यहाँ पे एक चीज ऐड अप करूंगा कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने थोड़ी सी एफर्ट की है और हमारा ग्रुप जो है वो 100+ के ऊपर लीड आउट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी एफर्ट्स यही है कि वी हैव टू रीच आउट टिल 1000 पार्टिसिपेंट्स और 1000 पीपल विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर स्टेट ऑफ द आर्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स। एक अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम टीम डेवलपमेंट कर रहे हैं विद ऑल अमेरिकन क्रेडिट गोस टू जिशान आरिफ साहब, जिशान नजम साहब, मोहम्मद रियाज, आदि, शीजा, we are all equal and we have to work at the range of the highest level. Thank you. और आई थिंक हमें इस चीज़ को एनकरेज भी करना चाहिए हम सबको मिलके कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी बढ़ें, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ इंगेज हों और अपने अपनी जो भी इनपुट्स देना चाह रहे हैं उस हवाले से वो अपने इनपुट्स भी दे सकें। तो मेरा ख्याल है नॉट ओनली दी व्हाट्सएप ग्रुप बट ऑल्सो ऑन दी वेबिनार सेशंस। One more thing यहाँ पे मैं ऐड अप कर दूंगा थोड़ा बिल रिलेट टू जिशान आरिफ सर और डॉक्टर जिशान सर कि आई एम रेडी टू विजिट द सिटीज कि मैं ये चाह रहा हूँ कि लाहौर से निकले, इस्लामाबाद में आए, पेशावर जाएं, लेकर केम अप विद ग्रो ऑफ द पीपल, लोगों को इकट्ठा करें, टैलेंट को इकट्ठा करें और हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जो है वी हैव टू ग्रो टुगेदर। श्योर इंशाल्लाह। So thank you so much, so nice of you, all of you. And inshallah we will meet again Most next welcome. Friday with a new diversified topic
हमारे पास मोमना है, मोमना को हमने पकड़ लिया है, नुज़रत को ले लिया है, डॉक्टर ज़िशान इज आवर with us, Zishan Arif is also with us. So inshallah ताला we build a good team inshallah ताला. Inshallah. Thank you, sir. Thank you so Thank you. much. इंशाल्लाह। Thank you Thank so you so much. much to all of you. Thank you so सर much. ज़िशान आरिफ साहब आप क्लोज आप करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है. All right जी, thank you so much all the participants. हिकमतुल्लाह साहब ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो उनको हम सुन नहीं सकेंगे बहरहाल, और टाइम भी ऑलमोस्ट अप हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात करेंगे, एंड होप कि हम और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। कि हिकमतुल्लाह साहब को अपने ग्रुप के अंदर जिनकी रेफरेंस सही है इनको ग्रुप के अंदर ऐड अप करवा लें. All right. Thank you so much sir. Please close out the thing sir. Thank you. Right जी, so thank you so much all of you. इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा हम इसी जज्बे से, और जो मेरी सजेशन है काइंडली उसको भी कंसिडर कीजिएगा कि We are all in the video mode. We are all in the yeah, video mode in the upcoming session inshallah. so it will be more attractive, specifically for the audience. Exactly. Right जी, thank you so much to all of you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you. Allah Hafiz.